student, today we will discuss the store control issue of material, or that is store ledger issue of material under your average simple average method. Simple average method. So, issue of material under your simple average method. This will comes under your store ledger, or it is a part of your store control. So, आप लोग को मालूम है क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. Clear my point? In case of simple average method, for example, we have purchased 400 units of a product at the rate of rupees 10. Clear my point? Then again we have purchased 300 units at the rate of rupees 12. Again purchased 200 units at the rate of 14. Clear my point? So, if you find the amount, then rupees 4,000, this will come into rupees 3,600, and this will comes to 2,800. Clear my point? This is your total amount. And question asks you to find out the simple average. Simple average. हम लोग करते क्या है? In case of simple average, we are not concerned with the unit. We are concerned with the price. Clear my point? In case of price, 10 plus 12 plus 14 divided by numbers 1, 2 and 3 divided by 3. This will comes to 36 by 3. That is comes to 12. This is your simple average. So अगर इसको फॉर्मूला में डालेंगे, then summation of price divided by numbers. Summation of price divided by number. This is your simple average. So we will discuss issue of material by applying simple average methods. Now you have to draw a store ledger as we have discussed. You will record everything. Reordering level, ordering quantity, everything will be recorded fast, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा हूं. So in this case, first is your debt, then your particulars, then your receipt, quantity, price and your amount, then your issue, quantity, price and amount. In this case also quantity, price and your amount. You will record here it is material receipt,
then issued, then your balance. Clear my point? Receipt, issue, and your balance. Now you will apply your simple average methods. We will try to understand how to prepare by applying how to prepare store ledger by applying simple average methods. We will take an example. You will find if anything material is received, then that will be added to the balance. Material received will be added to the closing balance, and if material issued, that will be deducted from the closing balance. ये बात आपको मालूम है? अगर मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो अपना मटेरियल बढ़ेगा, इसको बैलेंस के साथ ऐड करना है। अगर मटेरियल हम लोग इशू कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस घटेगा, इसको माइनस करना है। लेकिन हम किस हिसाब से इसको बनाएंगे? फर्स्ट इज रिसीव यूनिट, देन प्राइस, अमाउंट, issued unit, price, and amount. Unit, price, and amount. Unit, price, and amount. Clear my point? इतना लिखने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज 1 जनवरी 2015, क्लियर माय पॉइंट? ओपनिंग बैलेंस पार्टिकुलर में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना यूनिट है? 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10. This comes to your 4000. Then your closing balance is also 400 unit at the rate of ₹10 comes to 4000. Clear my point? अच्छा, you will find when we will apply simple average method at the time of issue of material, FIFO method is applied. But that is not applicable to your price. Remember this point. When you will issue the material, FIFO method will be applied. FIFO method will be applied at the time of issue. At the time of issue of material. But price may be differ. Price को हमको निकालना है, लेकिन जब भी issue करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे? FIFO मेथड। सबसे पहले जो पहला होगा उसी से इशू होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। सो एट द टाइम ऑफ इशू FIFO मेथड इज ऑलवेज अप्लाइड। सपोज इन 5th January 2015, again we have purchase means goods received, note number, GRN number, goods received, note number. Suppose we have received 200 unit at the rate of 12. This comes to 2400. Now balance is how much? You see, मैं आप लोगों को क्या बोला? जब भी हम रिसीव करेंगे एक ऐड होगा बैलेंस के साथ, और जब भी हम इशू करेंगे ये बैलेंस से ही माइनस होगा, बैलेंस से ही माइनस होगा। तो यहाँ जब हम रिसीव कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं? 200। तो हमारा जो बैलेंस है 400 प्लस 200, ये दोनों ऐड हो जाएगा। पहले से हम लोग के पास 400 था, अब 200 रिसीव किए, तो हम लोग के पास बैलेंस जो है 600 है। यहाँ पे और कोई
अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी प्राइस लिखने का जरूरत नहीं है। अब अमाउंट को जोड़ दो, अमाउंट कितना था 4000, यहाँ अमाउंट कितना है 2400, तो ये हो जाएगा 6400। क्लियर? यूनिट के साथ ऐड होगा, अमाउंट के साथ ऐड होगा। क्लियर माय पॉइंट? देन यू विल फाइंड आउट द बैलेंस। ये प्राइस कॉलम में पहला वाला लिख लेना और कोई भी चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर माय पॉइंट? इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, एक किताब में से समझ में नहीं आता है। अगेन सपोज 8 जनवरी 2015, अगेन वी हैव परचेज गुड्स रिसीव नोट नंबर। सपोज हम लोग परचेज किए 500 यूनिट, कितना रुपया में 11 रुपया में, ये हो जाएगा 5500। क्लियर? जब परचेज किए हैं तो बैलेंस के साथ ऐड होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कितना यूनिट था 600 यूनिट था, अब खरीदे कितना 500, तो जोड़ दीजिए 6 5 कितना हो जाएगा 1100 यूनिट हो जाएगा। कितना 1100 यूनिट। अभी अमाउंट के साथ जोड़िए, अमाउंट के साथ जोड़िए, कितना होगा 11900। क्यों? 5500 प्लस 6 5 11900। याद रखना, यूनिट के साथ ऐड करना है, अमाउंट के साथ ऐड करना है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। 10/1/2015 को हम इशू किए। इशू करने से क्या होता है, रिक्विजिशन स्लिप नंबर all are evidence of receipt and issue of material। कितना इशू करेंगे, आप थोड़ा ध्यान देना। हम लोग कितना यूनिट इशू करने जा रहे हैं 300 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट वी आर गोइंग टू इशू 300 यूनिट हम लोग इशू करने जा रहे हैं। अब देखो ये 300 फास्ट का पहले कितना था, ये 400 था ना? नहीं, जब 400 में से कितना इशू करना है हमको 300, तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा आपका प्राइस का। कैसे? 10 प्लस 12 प्लस 11, 10 प्लस 12 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3, 1 2 and 3। क्लियर माय पॉइंट? डिवाइडेड बाय 3, जितना रुपया आएगा उसी में से ही 300 रुपया इशू होगा। ये कितना रुपया आएगा, ये आएगा 11 रुपया। कितना रुपया आएगा 11 रुपया आएगा। तो 11 into 300 तो 3300। अब क्या करना है, जब इशू किए हैं तो बैलेंस से माइनस होगा। 1100 था, 300 चला गया, तो बचा कितना 800। क्लियर? 1100 था, 300 चला गया, तो कितना हुआ 800। अमाउंट भी हटा दो, 11900 माइनस 3300, तो कितना होगा 8600। बात समझ में आ रहा है? जब हम परचेज कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं यूनिट को यूनिट के साथ, अमाउंट को अमाउंट के साथ। जब इशू हो रहा है तो यूनिट से यूनिट माइनस हो जाएगा। कितना यूनिट था 1100 यूनिट, 11 में से कितना चला गया 300 चला जाने से कितना बचा 800, और अमाउंट कितना था 11900, उसमें से 3300 माइनस कर दो तो 8600। क्लियर माय पॉइंट? अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अगेन वी हैव इश्यूड ऑन 12th जनवरी 2015 रिक्विजिशन स्लिप नंबर
इशू कितना करेंगे अभी? 200 इशू करेंगे, 200। आप लोग देखिए FIFO मेथड अप्लाई होगा। पहला ये 400 में से 300 निकल गया, मतलब इसका और 100 बाकी है, इसका और 100 बाकी है। क्लियर है पॉइंट? ये जो 800 अभी बैलेंस है आपके पास, ये कैसा बैलेंस है? ये 500 पूरा है, 5 जो 700 और इसका 100 800। क्लियर है पॉइंट? ये जो हम लोग के पास बैलेंस 800 है, ये बैलेंस कहां से आया? ये 500 पूरा बैलेंस है, ये 200 हम लोग के पास पूरा बैलेंस है और 400 में से 100 बैलेंस है। क्लियर है पॉइंट? तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? 10 plus 12 plus 11 divided by 3, this comes to 11 rupees। इसको भी हम लोग को 11 रुपया में इशू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2200। 2200। क्लियर है पॉइंट? अभी हम लोग का देखो बैलेंस कितना था? 800। 800 में से कितना चला गया? 200 माइनस करना है, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? 600। अब अमाउंट कितना था? 8600 अमाउंट था, उसमें से कितना का सेल हो गया? 2200। तो ये कितना हो जाएगा? 6400। ये कितना हो जाएगा? 6400। क्लियर है पॉइंट? दिस इज द प्रोसीजर इन केस ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। देन सपोज अगेन वी परचेज ऑन 15th जनवरी 2015। तो यहाँ क्या होगा? गुड्स रिसीव नोट नंबर, गुड्स रिसीव नोट नंबर कितना हम रिसीव किए? 314 के हिसाब से 4200। अब जब रिसीव किए हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना था? 600 था, उसमें से कितना जोड़ेंगे? 300 जोड़ेंगे, तो बैलेंस अपना कितना हो जाएगा? 900। अमाउंट में बैलेंस कितना था? 6400। अभी हम लोग का बैलेंस कितना ऐड हो जाएगा? 10800, 10600, 10600 सॉरी 10600। क्लियर है पॉइंट? अब इश्यू करते हैं। इश्यू ऑन 18th जनवरी 2015। कितना इश्यू करेंगे? रिक्विजिशन स्लिप नंबर, रिक्विजिशन स्लिप नंबर कितना इश्यू करेंगे? 400। अब देखो ये जो 900 का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? ये 300 और 500, 5 3 800 और यहाँ का कितना है? 100। क्लियर है पॉइंट? इसका 300 है, इसका 500 है। हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस 900 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है ये 300 पूरा है, ये 500 पूरा है, 5 3 800 हो गया और इसका 100 है। सिर्फ कितना है? 100 है। तो जब इशू करेंगे हम क्या करेंगे? 12 plus 11 plus 14, 12 plus 11 plus 14। क्लियर है पॉइंट? इसका पूरा इशू हो चुका है, ये 3 का है, तो इसका रेट को लेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये कितना रुपया आएगा? ये आएगा आपका 12 रुपीस 33 पैसा, 12 रुपीस 33 पैसे। That means amount is 4932, 4932। अब बैलेंस निकालेंगे। कितना था? 900 था, 900 में से कितना इशू किए? 400। बैलेंस कितना बचा? 500, है ना? और 10600 था, 10600 में से कितना निकाल दीजिए? 5668, 5668। क्लियर है पॉइंट? ये है तरीका एवरेज निकालने का। आप लोग लिख लीजिए। मान लीजिए हम 30 तारीख को फिर इशू किए, 30 तारीख। ये जो 500 है हम लोग का कौन सा? ये 300 पूरा है और ये 500 में से 200 बचा है इसमें। तो आपको दो अमाउंट लेना है।
अब फिर इशू किए रिक्विजिशन स्लिप नंबर, रिक्विजिशन स्लिप नंबर। अब कितना हम लोग इशू करेंगे, मान लीजिए 400, कितना इशू करेंगे 400। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका 300 पूरा और इसका 100, मतलब 11 प्लस 14, 11 प्लस 14 divided by 2, this comes to 25, 25 by 2 is equal to 12.5, 2.5 sorry 2.5, 2.5 इतना में आप लोग इसको इशू करें, 12.5। फिर आप बैलेंस दिखाएंगे। तो ये जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। इसमें से हम लोग क्या सीखे, ये सीखे कि यूनिट के साथ जितना भी रिसीट होगा यूनिट ऐड होगा, अमाउंट के साथ जितना भी यूनिट ऐड होगा वो ऐड होकर यहां दिखाना पड़ेगा। दूसरा बात कि अगर इशू हो रहा है तो इशू के लिए हम लोग एवरेज मेथड अप्लाई करके प्राइस निकालना है और यूनिट से यूनिट को माइनस करना है, अमाउंट से अमाउंट को माइनस करना है। ये जितना भी निकलेगा दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस अंडर योर सिंपल एवरेज मेथड्स। आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं वेटेड एवरेज आप लोग को समझा रहा हूं, आप लोग ले लीजिए, मिटा रहा हूं फिर मैं। क्लियर, इसको लिखिए, किताब में अच्छा से नहीं समझाया है, लिख लीजिए। क्लियर, अब इसको हम वेटेड एवरेज मेथड में कैसा करना है थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इन केस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड you will find out the weight, weight means quantity multiply into price, जितना निकलेगा उसके ऊपर में से ही हमको इशू प्राइस निकालना है। क्लियर, देखिए मैं कैसे बता रहा हूं आप लोग को। इन केस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, ये जो मेथड था ये सिंपल एवरेज मेथड था। देखिए जब हम वेटेड, फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आएगा डेट, पार्टिकुलर्स, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, देन यूनिट, प्राइस। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना। ये होगा प्राइस, देन अमाउंट, then unit, amount, unit price, amount। अब देखो वेटेड मेथड में आपको कैसे करना है। ये वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, देखना वही क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और उसको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंसिपल वही है, जितना रिसीव होगा दैट विल बी एडेड, यूनिट यूनिट के साथ ऐड करेंगे, अमाउंट
अमाउंट के साथ ऐड होगा। अगर हम इश्यू करते हैं तो यूनिट से माइनस होगा और अमाउंट से ही माइनस होगा। सपोज हम लोग के पास कोई 1 जनवरी 2015 ओपनिंग बैलेंस कितना था 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10। दिस कम्स टू 4000 यूनिट। अच्छा, यूनिट में वही होगा, पहला 400 यूनिट बैलेंस होगा। प्राइस आपको निकालना है, पहला 10 लिख लीजिए, उसके बाद 4,000। क्लियर? फिर मान लो हम लोग परचेज करते हैं 5/1/2015 को, 5 जनवरी 2015। गुड्स रिसीव नोट नंबर कितना परचेज किए 200 परचेज किए एट द रेट ऑफ 12,400। अब यहां देखो, जब परचेज कर रहे तो ऐड होगा 400 यूनिट था, 200 यूनिट खरीदे तो टोटल यूनिट हो गया आपका 600। क्लियर? दूसरा 4,000 रुपया था, अब 2,400, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 6,400। कितना हो गया? 6,400। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ यू विल कैलकुलेट प्राइस पर यूनिट। आपको करना क्या है, ये 6,400 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट है 600 यूनिट। दिस कम्स टू 10 रुपीस 667 पैसे। मैं कैसे क्या समझ में आया? सबसे पहले यूनिट को यूनिट के साथ ऐड कर दीजिए, अमाउंट के साथ अमाउंट, अभी वैल्यू और प्राइस पर यूनिट निकालिए, मतलब 6,400 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट, वैल्यू पर यूनिट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, अब मान लीजिए 5 जनवरी 2015 हम फिर खरीदे गुड्स रिसीव नोट नंबर, कितना खरीदे 500 यूनिट खरीदे, कितना रुपया देके 11, तो ये हो जाएगा 5,500। अब फिर ऐड करना है, कितना यूनिट था 600 यूनिट था, कितना यूनिट खरीदे 500 यूनिट खरीदे, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 1100। बात समझ में आ रहा है? कितना अमाउंट था 6,400 अमाउंट था, अब खरीदे कितना 5,500, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 11,900। अब इसको प्राइस पर यूनिट निकालिए, 11,900 डिवाइडेड बाय 1100, 11,900 डिवाइडेड बाय 1100, ये होगा 10.882। ये आपका प्राइस चेंज होते जाएगा। ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या है? समेशन ऑफ अमाउंट, मतलब यूनिट मल्टीप्लाई इनटू अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज योर वेटेड एवरेज। क्लियर? अब जब हम इशू करेंगे, मान लीजिए हम लोग 300 इशू करेंगे 6 जनवरी 2015, क्या होगा रिक्विजिशन स्लिप नंबर। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 300 यूनिट कहां से इशू करेंगे? यहीं से 1100 आपके पास है, यहां से डायरेक्ट इशू होगा, कितना रुपया में होगा? ये प्राइस में होगा, मतलब 10.882। क्लियर है पॉइंट? 10.882 ये आएगा 3245। अब यूनिट से यूनिट माइनस करो, 1100 में से 300 गया 800, कितना यूनिट है 800। अब 11,900 में से 3245 को माइनस करना, यहां से इसको माइनस करना है,
यूनिट से माइनस होगा, अमाउंट से माइनस होगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप जब माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 8655। अब इसको 8655 डिवाइडेड बाय 800, 8655 डिवाइडेड बाय 500, ये हो जाएगा 10.8188। 10.8188। क्लियर है पॉइंट? अभी फिर हम रिसीव करेंगे 8 जनवरी 2015 गुड्स रिसीव नोट नंबर है कितना रिसीव किए? 300 दिस कम्स टू 4200। तो हमारा कितना स्टॉक था? 800। कितना खरीदे? 300। 800 और 300 कितना हो गया? 800 और 300, सॉरी यहाँ इशू कर देते हैं, आपको समझने में इजी होगा। और एक तो इशू कर देते हैं, आपको समझने में इजी होगा। हाँ, हम इशू करते हैं फिर 200। तो यहाँ होगा रिक्विजिशन स्लिप नंबर, कितना इशू करना है? 200 इशू करेंगे। अब कौन सा प्राइस पे करेंगे? इस प्राइस पे, मतलब 10.8188। क्लियर? तो ये आएगा आपका 2164। अब यूनिट के माइनस करो, 800 में से 200 चला गया, कितना बचा? 600। अब 8655 में से 2164 निकल गया, तो कितना बचेगा? 6491। यहाँ फिर आपका प्राइस निकालना पड़ेगा। 6491 डिवाइडेड बाय 600। 6491 डिवाइडेड 10.8183। 10.8183। क्लियर? कैसे मैं निकाल रहा हूं? कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आप रिसीव करो 10 जनवरी 2015 गुड्स रिसीव नोट नंबर, कितना? 300 रिसीव करते हैं 14 रुपए के हिसाब से 4200। जब रिसीव करते हैं तो ऐड होगा, मतलब 600 प्लस 300 ये हो जाएगा 900। 600 प्लस 300 ये आपका हो जाएगा 900। इसका कितना होगा? ऐड कर लो, ऐड करने से 10,691। हम लोग के पास अमाउंट कितना था? 6491 प्लस 4200, तो ये हो जाएगा 10,691। तो प्राइस करेंगे 10,691 डिवाइडेड बाय 900। 10,000 डिवाइडेड बाय 900 ये आएगा 11.8789। देन फिर इशू कर देते हैं 31 जनवरी 2015 रिक्विजिशन स्लिप नंबर। कितना इशू करेंगे? 400। कितना? ऑलरेडी हम लोग अमाउंट निकाल चुके हैं, इसी अमाउंट में आएगा 11,8789। तो इसका आएगा आपका 4752। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 900 में से कितना चला गया? 400, बचा कितना? 500। अमाउंट कितना है? 10,691, चला गया कितना? 4752, तो ये बचेगा 5939। प्राइस पर यूनिट निकाल दो। 5939 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 11.87। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। ये दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू योर वेटेड एवरेज मेथड। So this is the difference between
सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। इसमें सिंपल है, यूनिट के साथ यूनिट को ऐड करना, दोबारा मैं रिवीजन कर दे रहा हूं। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था 400, 200 परचेज किए तो टोटल हो गया 600, अमाउंट था 4000, परचेज किए 2400 तो आपका आ गया 6400। और यूनिट कैसे निकाला मैं? 6400 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 600 किया, प्राइस पर यूनिट आ गया। और जिस प्राइस पर यूनिट लास्ट होगा उसी प्राइस में ही आपका इशू होगा। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर माय पॉइंट? इतना ही था आपका। पहले हम लोग पढ़े फीफो मेथड, उसके बाद लिफो मेथड, उसके बाद सिंपल एवरेज मेथड, देन योर वेटेड एवरेज मेथड। तो इसको आप लिख लीजिए, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर? क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेबर स्टार्ट करेंगे। मटेरियल का जितना प्रैक्टिकल पार्ट था हम लोग आज खत्म कर दिए हैं। हम लोग लेबर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबको धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है या फिर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मेरे को पता चले आपका क्या डाउट है, उस हिसाब से मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।